तो बच्चों एक और पार्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हमेशा की तरह हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो बहुत ही इजी लेवल के नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स या एसएससी के एग्जाम्स में देखेंगे। तो हम लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के हिसाब से मैं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत इजी क्वेश्चंस भी लेके आ सकता हूँ, बहुत इजी, बिल्कुल आपको एक ही ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। लेकिन हमें जो तैयारी करनी है इस हिसाब से करनी है कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। तो चलिए आगे चलते। तो ये हमारे पास वी हैव 4 sentences A, B and C, D. What these sentences says? The first sentence says inside the auditorium. The other one says other people. Third one says apart from us. And fourth one says there were several. Now we have these 4 options, and I have told you that in the exam you will have very limited time of period, very limited time. So if you will have so much time, so you can easily get the answer. If you have so much time, let's take an example, you have 1 hour to complete one question. So it is very easy to solve that question. But what happened in reality, it is very different. What happened in reality? In reality, you have so much questions to complete and time is very limited. Maybe there is 5 minutes remain in your exam, and you will have 50 or more than 50 questions to complete. So what I'm trying to tell you that we will have to adopt the new strategy or new trick to solve these kinds of questions. So what are those tricks? We are going to solve those questions according to those tricks. So what I'm going to tell you that these were the 4 options we do have in our exams. The first option says BDCA, BDAC. The second one is saying CBDA. Third one is saying CDBA. और उसके बाद fourth है ABD. So the first trick that I have told you that we have to find out the first letter in the 4 options. So first letter क्या है? In the 4th option it is A, and the third it is C, then it is C and B. Now what we have to do, we don't need to manage, or we don't need to do the meaning, what are the meanings or what are the meanings they are trying to tell us. नहीं, हम लोगों को क्या जाना है? हम लोगों को जाना है कि what can be the first sentence within these 4 options. पहला कौन सा होगा? तो चलो पहला क्या करना है? We don't need to find it. We will go through the options. तो ये ऑप्शन हमारे पास. So let's check out the 4th option. So in the 4th option, A is the letter which is coming in the first time. A. तो A को लेकर के चलते क्या कहता है? Inside the auditorium. Maybe it can be our first option. लेकिन उसके बाद भी चेक करते हैं A के बाद B क्या कह रहा है? Inside the auditorium, other people. ठीक है, अदर पीपल. एंड डी क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम अस. अच्छा, बी और डी और सी का कहीं, बी और डी का कहीं पेयर नहीं बन रहा. अदर पीपल, देयर वर सेवरल. एक चीज हो सकती है, देयर वर सेवरल अदर पीपल, क्योंकि ये जो सेवरल है ना, इट इज जस्ट लाइक मैनी. मैनी क्या कहता है? मैनी के साथ जब भी मैनी वर्ड आता है ना, इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन विद इटसेल्फ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम राइटिंग हियर, आई हैव सीन मैनी फ्रेंड. I have seen many friends. An examiner is giving you this kind of question. An examiner is telling you that find out the error. So what we have to do? ये many के बाद we will always use plural noun. So we have to make it plural. Friends. अच्छा, अगर यहाँ पे teacher होता तो we will do teachers. अच्छा, अगर यहाँ पे pen होता तो we will make plural पेंस. इट बिकम्स पेंस, मैनी पेंस. तो कुछ भी होगा तो प्लूरल होगा. और सेम जो है सेवरल भी काम करता है. सेवरल के बाद कुछ भी आएगा तो वो प्लूरल रहेगा. सो देयर वर सेवरल अपार्ट फ्रॉम अस नहीं हो सकता, तो डी के बाद सी नहीं आ सकता. देयर वर सेवरल इनसाइड द ऑडिटोरियम नहीं हो सकता. अच्छा, लगेगा आपको कि सही है, लेकिन इट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो देयर वर सेवरल अदर पीपल, क्योंकि ये पीपल प्लूरल हो गया. तो डी के साथ बी का पेयर कहीं बनेगा, ऐसा हमें लगता है. डी के साथ बी का पेयर बन रहा है. तो डी के साथ बी का पेयर कहाँ है जी? डी के साथ सी है. डी के साथ बी का पेयर यहां बन रहा है. डी के साथ ए का पेयर नहीं हो सकता. डी के साथ ए का पेयर नहीं हो सकता. अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा. और डी के साथ यहां पे सी का पेयर ये भी नहीं हो सकता. उस हिसाब से हमारा आंसर मिल गया हमें CDBA. और अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है, मे भी 5 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड इतना होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे,
तो मान लीजिए आपके पास 2 सेकंड है, आपको तुक्का मारना है। अब आप बोलोगे सर तुक्का क्यों मारेंगे हम लोग? तुक्का बेटा कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि हम लोग सही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप जरा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने 30 क्वेश्चन सही करे हैं, तो 30 और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 60। आपकी कट ऑफ जा रही है 80, क्या कर लोगे? 60 आप सही भी कर लो, पहले तो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सही हो, लेकिन मान लीजिए सही भी है तो आपकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही, तो आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा, 30 से ज्यादा करने पड़ेंगे। तो तब तुक्का मारो, चाहे बहुत बढ़िया करो अगर आप कॉमन सेंस से कर पाते। तो इस हिसाब से अगर आपको तुक्का मारना है, सो यू विल मार्क दिस ऑप्शन। ये भी तुक्का होगा लेकिन चांसेस सही होने के ज्यादा है, ठीक है। एक ट्रिक से हमने निकालते, एक बार इसको मैच कर लेते हैं। CDBA को क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम अस देयर वर सेवरल अदर पीपल इनसाइड द ऑडिटोरियम। बिल्कुल सही बैठ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन। एक बार हम लोग और चीजों को चेक करते हैं, सी वाला चेक करते हैं। सी क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम अस। अच्छा, ये सी लास्ट का ऑप्शन नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम अस मतलब हमारे अलावा। हमारे अलावा क्या? तो ये सी हमारा लास्ट का ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत हो गया। ए क्या कह रहा है? इनसाइड द ऑडिटोरियम। इनसाइड द ऑडिटोरियम क्या? इनसाइड द ऑडिटोरियम हो सकता है, लेकिन डी के बाद ए नहीं हो सकता, ये भी गलत। उसके बाद चले सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन हम लोगों ने पहले ही गलत कर लिया था, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला ट्रिक देख रहा हूं मैं, लास्ट वाला लेटर, उस हिसाब से हमें पता चल गया कि CDBA। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? पेयर मिलाया। इससे पहले वाले में भी क्या किया था? पिछले पार्ट में पेयर मिलाया था किसी एक के साथ, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, यहाँ पे सेवरल के साथ पीपल, कहीं पे हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से पेयर। देखो बेटा, हमें ना बहुत सारी ट्रिक्स लेकर के चलनी पड़ेगी। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप वॉर लड़ने जा रहे हो ना, तो वॉर में यू कैन नॉट गो विद दी वन वेपन। आप एक हथियार लेकर के नहीं जा सकते। यू शुड हैव मल्टीपल वेपन्स, है ना, आपके पास बहुत सारे होने चाहिए। अगर एक काम नहीं कर रहा है, इफ वन वेपन इज नॉट वर्किंग वेरी फाइन, सो यू वुड हैव सो मेनी वेपन्स टू यूज। तो आपके पास बहुत सारे होने चाहिए। एक नहीं चल रहा दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा चल रहा है, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो कई सारी ट्रिकें देखनी है, पहला लेटर ढूंढना है, पेयर बनाना है, लास्ट वाला ऑप्शन चेक करना है। तो कई सारी चीजों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक और चीज ध्यान में रखें, जिन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, मॉडरेट से भी ऊपर हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये बहुत इजी है, हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आप इनको बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा ठीक ठाक स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल बहुत बढ़िया है स्टूडेंट है, ठीक ठाक स्टूडेंट है, लेकिन हम लोग अच्छे लेवल के सवाल कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी लग रही हो, लेकिन हम लोग जो लेवल देख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा लेवल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। तो चलो, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है। क्या है क्वेश्चन? हमेशा की तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं इजी क्वेश्चन करूँगा तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और लगेगा आपको मजा भी आ रहा है, लेकिन वो लेवल जो है हम लोग रीच नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। तो क्या कह रहा है? कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव। दूसरा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और थर्ड है थ्रू आउट द ईयर। फोर्थ हमारे पास इन सिटीज अराउंड द विलेजेस, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस टू चूज। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज DCAB, BADC, BDAC और CADB. So I have told you that we should not solve or we should not arise or we should not solve these questions. हमें मीनिंग नहीं देना, हमें क्या देखना है कि we should go through the options. ऑप्शंस हमें देखने हैं और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो चलो जरा चेक करें, लेट्स चेक आउट these questions, these options. It is saying fourth option saying CADB. तो जरा C हमारे फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, कुछ हद तक हो भी सकता है C, कुछ हद तक हो भी सकता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये होगा ही नहीं। इस सवाल में हो सकता है नहीं होगा, लेकिन दूसरे में हो जाए, थ्रू आउट द ईयर सबसे पहले आ जाए। लेकिन हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये पहला लेटर हो सकता है। उसके बाद चेक करते हैं कि CA क्या कह रहा है। थ्रू आउट द ईयर कैन मेक, अब ये थोड़ा सा सही नहीं हो सकता। कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव, ये इंटरोगेटिव बना दे रहा है। हेल्पिंग वर्ब मॉडल जब भी आ जाएगा ना, सेंटेंस बिकम्स इंटरोगेटिव। सो A इज नॉट सुटेबल विद C. सो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक our fourth option will be wrong. Our fourth option will be wrong. अच्छा, एक बार और थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके सेकंड पे चलते हैं। BADC क्या कह रहा है? BADC कह रहा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हो सकता है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव, ठीक हो सकता है। B और A का पेयर बन रहा है। इन सिटीज अराउंड द विलेजेस, अच्छा बोल रहा है कि इंडियन फार्मर को एक्टिव कर देगा, या कैन बना सकता है कहाँ पे? इन सिटीज अराउंड द विलेजेस। और उसके बाद क्या कह रहा है? थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन BADC भी हो सकता है।
एक बार इसको चेक कर लें, DCAB क्या कहता है, इन द सिटीज अराउंड द विलेजेस थ्रू आउट द ईयर। अब डी के साथ सी का पेयर नहीं बनेगा, डी के साथ सी का पेयर नहीं बनेगा तो ये गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और हम लोगों ने ये पहला आंसर मार लिया, लेकिन एक बार जरा थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करना क्या कह रहा है, BDAC। अच्छा, बी के साथ यहाँ ए का पेयर बन रहा था, यहाँ बी के साथ डी का पेयर बन रहा है, तो जरा देख लेते हैं क्या बनेगा। तो क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके बाद डी है, इन सिटीज अराउंड द विलेजेस। अच्छा, किसकी बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज की, किस इंडस्ट्रीज की, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है इन सिटीज, सिटी में अराउंड द विलेजेस, जो विलेजेस के आसपास हैं। AC कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव। अब ये ना, ये ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इस बात का रेफरेंस दे रहा है इसके साथ, और डी के साथ ए का पेयर आएगा, तो डी के साथ ए का पेयर आया और बाकी हमारा बच गया कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, ऐसा कह रहा है थ्रू आउट द ईयर। एक तरह से ये रिजल्ट है, और जो रिजल्ट है ना वो हमारे सबसे लास्ट में आएगा रिजल्ट। तो सेकंड और थर्ड को देख करके कभी आपको लगेगा सेकंड है, लेकिन थोड़ा सा आपको डीप जानना है कि ये जो बी है ना, बी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और डी जो कह रहा है, इस डी को क्या कर रहा है, ये डी जो है इस बी के बारे में एलेबोरेट कर रहा है कि कहाँ का ग्रोथ, इन सिटीज में, कहाँ पे, जो कहाँ पे हैं, अराउंड द विलेजेस के जो आसपास हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है, कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव, क्या कर सकता है वो इंडियन फार्मर्स को एक्टिव कर सकता है, जो क्या है, विलेजेस के आसपास जो सिटी है उनकी ग्रोथ की बात कर रहा है, और लास्ट में कह रहा है थ्रू आउट द ईयर। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार और देखते रहें, बार बार इनको देखते रहें, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम इसी तरह की क्वेश्चन की सीरीज और भी आपके सामने लेकर के आएंगे, बस आपको पढ़ते रहना है, अपना सेंस जो है, अपनी थिंकिंग डेवलप करती रहनी है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।